guys, this is Gaurav and you are watching Dad of Cat. Well, today I'm going to give you those 10 big mistake list which people do before starting their e-commerce jewelry business. Mistake number 1, trial. A lot of jewelers say this that मैं पहले trial लूँगा. I'll first try the e-commerce business. सर, jewelry e-commerce business में आप trial नहीं कर सकते. You have to enter with preparation. अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे BMW का काम करना है, but मैं पहले trial लूँगा, तो क्या मेरा business चलेगा? मतलब I will purchase one BMW. I'll take up a small place and I'll start my business. Will I get customers? No. Will I be trusted? No. तो हाउ कैन यू टेक अ ट्रायल ऑफ ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस? इस बिजनेस में बहुत रिसर्च करना होता है, एक टीम लगती है, आपको बहुत प्लानिंग लगती है, आप इसका ट्रायल नहीं कर सकते. चलिए माना कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं भी है, तभी भी आपको आपका जो बजट है उसको प्रॉपरली एलोकेट करना होगा. कहाँ एलोकेट करना होगा वो आने वाले 9 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं. मिस्टेक नंबर 2, पीपल थिंक इट्स अ वन मैन शो. इट्स नॉट अ वन मैन शो. ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. आपकी लॉजिस्टिक के डिपार्टमेंट है, आपके ब्रांडिंग के डिपार्टमेंट है, आपका इन्वेंट्री वाला काम है. यू हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ न्यू डिज़ाइंस, यू हैव टू अपलोड डेटा, आपको डेटाबेस मैनेज करना है, आपको सोशल मीडिया हैंडल करना है, आपकी कस्टमर सर्विस आपको हैंडल करनी है. तो ये वन मैन शो वाला काम नहीं है सर. यू नीड अ टीम. But if you still think you can do it all alone, all the very best. Mistake number 3, people are giving the digital marketing responsibility in wrong hands. देखिए बहुत से ज्वेलर्स को मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो डिजिटल मार्केटर्स हायर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है. नाउ आई हैव नथिंग अगेंस्ट ओल्ड पीपल, बट आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यंगर जनरेशन की है. तो आपका जो डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रहा है, he has to be a young and dynamic person. गलती नंबर 4 जहाँ अक्सर ज्वेलर्स ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज उनका पूरा का पूरा फोकस सेल्स पे रहता है, इट्स ब्रांडिंग. See, if you are entering an e-commerce business, then you have to take utmost care of the logo, of your website, of your whole branding and your packaging as well. Just imagine that if you want to go for a dinner to a fine dine place, you'll first check out the ambience, you'll first check out the interior, and then you will check out the food quality. So if you want to create a very good impression, you have to take care of the branding, क्योंकि यहाँ पे compromise की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है. Mistake number 5, not using videos. Video marketing is the next big thing in 2019. कितनी बार मैंने ये बात चिल्ला कर मैंने बताई है कि please include animation. अगर आप ई-कॉमर्स में हैं तो यू मस्ट नो दैट जो आपकी ऑडियंस है दे प्रेफर टू सी वीडियोस ओवर स्टिल इमेजेस बिकॉज दैट गिव्स देम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अबाउट द प्रोडक्ट. ऑल्सो इफ यू यूज वीडियोस यू गेट हायर रीच, यू गेट मोर अटेंशन, इट्स मोर अट्रैक्टिव. एंड सबसे अच्छी बात यह है दैट इफ यू आर यूजिंग वीडियोस इन योर ज्वेलरी बिजनेस, योर ब्रांड विल लुक अप टू डेट. सो अगर एज अ ब्रांड आपको अप टू डेट दिखना है, you have to include good quality of videos. Mistake number 6, still using photography. सर मुझे पता है कि आपके पास बहुत से डिज़ाइन स्टॉक में पड़े हैं, आपके पास बहुत सारे मोल्ड्स रबरडाइज पड़े हैं, बट e-commerce is all about being fresh, it's all about being new. You are targeting the younger generation, you have to show them something fresh. You cannot use old designs. तो if you're still thinking कि आप old designs की फोटोग्राफी करा के इसको यूज़ करेंगे, and I'm sorry because e-commerce पे आपको rendering यूज़ करना है because rendering images will give you a very nice crisp and appealing look. Mistake number 7 जो अक्सर लोग बिजनेस में आने के बाद करते हैं वो है not uploading, in fact not updating their inventory on regular basis. Sir, on e-commerce you have to come up with something new every season. आप if you go to a Nike store or if you go to any good brand, you'll always see new collection every season. Summers के लिए नया collection है, winter के लिए नया collection है, for monsoon they have a new collection. So as a customer, what you think about that brand? You think कि यार इनकी तो क्या टीम है, इनका तो काम बहुत अच्छा है, हर बार कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, भले इनके सेल्स हो रहे हो या ना हो रहे हो,
स्टिल आपका जो इम्प्रेशन है उनके प्रति वो बहुत ऊंचा होता है. सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स यू हैव टू अपलोड न्यू डिज़ाइंस एवरी मंथ. बट आज भी मेरे नॉलेज में ऐसे बहुत से ज्वेलर्स हैं जो 3 साल से एक ही डिज़ाइंस यूज़ कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि उनका बिजनेस चल पड़ेगा, मगर अफसोस उनका बिजनेस नहीं चल रहा है. एंड नाउ यू मस्ट नो व्हाई. सो ऑलवेज इंक्लूड न्यू डिज़ाइंस एवरी इंटरवल. मिस्टेक नंबर 8 जो अक्सर लोग बिजनेस के पहले करते हैं वो है नो बजटिंग. वेल, पीपल डोंट प्लान टू फेल, पीपल ऑलवेज फेल टू प्लान. व्हेन यू स्टार्टिंग ई-कॉमर्स यू हैव टू एलोकेट योर बजट. यू हैव टू डिसाइड कि मैं ब्रांडिंग में इतना पैसा लगाऊंगा. आई विल स्पेंड दिस मच फॉर माय वेबसाइट, दिस मच फॉर माय इन्वेंटरी, दिस मच फॉर माय मार्केटिंग. तो आपको एक बजट डिसाइड करना होगा, तो ही आप इसमें सक्सेसफुल बन सकते हैं. एंड जस्ट टू गिव वन थिंग इन माइंड, अगर आप बजटिंग कर ही रहे हैं तो यू हैव टू स्पेंड मैक्सिमम बजट ऑन योर मार्केटिंग. बिकॉज जो हमारे मार्क ज़करबर्ग भैया हैं उन्होंने फेसबुक एड्स की जो कॉस्ट है काफ़ी बढ़ा कर रखी हुई है. अभी उनकी मोनोपोली है तो भाई सब कुछ उनके हाथ में है, वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं. तो फेसबुक एड्स कॉस्ट इज गोइंग हाई डे बाय डे. सो यू हैव टू allocate maximum budget for your marketing. Mistake number 9, not choosing a good name. अगर आप e-commerce पे हैं, you have to keep a trendy, a very youthful name. You cannot still keep names like Arihant Jewelers, Bhairav Jewelers. No offense to them, but e-commerce पे आप पुराने नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते because आपकी audience यंगर जनरेशन की है. इफ़ यू कीप नेम्स लाइक भैरव एंड अरिहंत ज्वेल्स तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपसे बहुत दूर पहले ही भाग जाएगी. सो प्लीज़ कीप अ ट्रेंडी नेम. और आखिर में मिस्टेक नंबर 10, ज्वेलर्स आर अपलोडिंग डिज़ाइंस व्हाट दे लाइक. आप ई-कॉमर्स पे हैं, यू डू नॉट नो व्हाट योर कस्टमर विल लाइक. इन फैक्ट यू डोंट इवन नो हु योर कस्टमर इज. सो व्हाट डिज़ाइंस यू लाइक योर कस्टमर मे नॉट लाइक. What your customer may like, you won't like. So you cannot keep designs what you like. You have to experiment. You have to keep a very big inventory of designs. So those were the 10 big mistakes which jewelers do in e-commerce. And until next time, with lots more of valuable content from Gaurav and team, I'll see you guys very soon.